whenever you are studying a D flip flop, okay, and the symbolic notation D क्या कहलाता है? D stands for data over here. I hope this point is clear for all. Please raise your hand. So introductory part में the first point is whenever we are talking about a D flip flop, तो D flip flop में जो D लिखा हुआ होता है, the first alphabet which is written over there before flip flop, which is D. So it is a data. So D stands for data over here. Moving to the next point. The next point talks about D flip flop is it's a digital electronic electronic circuit. So whenever we are talking about a D flip flop, so D flip flop, it is what? It is a digital electronic circuit. So I'll just show you how the electronic circuit is all about. Moving to the third point. Third point says CP. CP stands for clock pulse. Whenever you are talking about a D flip flop, clock pulse, which is known as CP, is being used in D flip flop to set and reset. I hope this point is clear. So 3 points I've mentioned. The first one is D stands for data in D flip flop. Second point says that D flip flop is a digital circuit, electronic circuit. And third point talks about CP, clock pulse. So clock pulse is used for resetting and setting the entire flip flop. So please raise your hand. I hope these 3 points are clear. Please raise your hand. So whenever we are talking, अब मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, जब भी हम बात कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप की, डी फ्लिप फ्लॉप की, तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है D stands for data. D stands for data in D flip flop. Second point is saying D flip flop is a digital electronic circuit. And third point is saying that CP is a clock pulse which is being used in a D flip flop. Now moving to the next point. We have a output. We have two output. ठीक है, तो इसमें Q एक होता है, Q जो कि हमारा होता है normal output, and we have a normal output, and then we have a Q dash. Then we have a Q dash, which is complemented output. Complemented output, जिसको हम बोलते हैं inverted output. I hope this point is clear. So whenever we are talking about the output, we have two types of output over here. First is Q, which is the normal output, and second one is a complemented output, which is known as inverted output. Okay, next point. D flip flop is the mostly used flip flop. So D flip flop is ऐसा flip flop which is the mostly used flip flop. So whenever we are talking about the D flip flop, these are the points that you have to keep in mind to describe a D flip flop. I hope this point is clear. So we have approximately 6 points to explain the concept of D flip flop, and one by one, in the diagrammatic representation, I'll show you how the D flip flop is. Now feature selection. Logic is clear for all. Please raise your hand so that I can move further. If you have any query, please turn on your microphone and ask me. If you have any query, don't hesitate. Turn on your microphone and ask me. Perfect. Okay, so before moving further, I just want to show you one small video of a D flip flop so that it becomes easy for you to understand. So I hope everyone is ready to watch a small clip. Please raise your hand. Everyone is ready to watch a small logical clip so that it becomes easy to understand what the D flip flop is all about. I've got this video somewhere from the YouTube also. Okay, so you can also get it. So I'm just sharing. I've just downloaded. Okay, where it is. It is CD. Okay, it's over here. Projection of multi-dimensional feature structure to a lower dimension. I hope the screen is visible to all. I will turn off this audio of this video so that logic becomes clear for you. I'll explain over here. Can I start? Please raise your hand, everyone. Can I start? Perfect. Okay, perfect. So basically, when we are talking about the flip flop, just moving further,
Just moving for okay. So if we are talking about the flip flop, how the flip flop looks like, what is a diagrammatic representation of flip flop? So this is a diagrammatic representation. Here you have a set of inputs. ये आपका एक actual में जो chip होती है. Okay, so it is designed like that. ठीक है, it is embedded on a hard motherboard. Okay, so here see this. Here you set of inputs. You can see. Here you have a set of inputs. Okay, and all the computing take place within this device. Okay, so I am having two flip flops over here. I hope logic is clear. अब सबको दिख गया कि how it look likes and how it is. Please raise your hand. ठीक है, okay, perfect. Now moving further, how it will be. ठीक है, so whenever we are talking about a flip flop, it looks like in this manner. Okay, in a hardware, and if I talk about in logical diagrammatic form, then it looks like this. Okay, I hope point is clear. Agar if it has been manufactured and it is embedded on your machine, then the component is like this. Okay, and if we talk about the logical part of a flip flop, how does it work and all that diagrammatic representation, then it is represented like this. Please raise your hand if the logic is clear. Please raise your hand. The logic is clear. Yeah, why I'm showing you a small clip? The reason is that one picture speaks more than 1,000 words. Okay, so okay, perfect. Now moving further. So here, as we have discussed about the SR flip flop, and it's working is being shown over here. So I'm just clipping back to make you understand. If the signal is high, see if it has been completed. See this. अगर ये यहाँ पे high हो गया, just a second. Yeah, okay. Now just see. Here the signal is not complete and here the circuit is all not complete. Okay, so यहाँ पे देखो the output is 0. अभी 0 या 1 होगा, low या high पे. S R flip flop है, Q और Q dash आपका इसका output है. This is the block diagram of SR flip flop. Now as soon as this line is completed like this, just see the S part. As soon as it has been completed, just see, and the value is 1, then automatically the output will go as 1 in Q. Point is clear for all. So whenever we are talking about the flip flop, okay, through a block diagram, we need to understand how the things are. See what is happening over here. It has been completing the entire signal, and on the output screen in Q we are having 1. Point is clear for all. Please turn on your microphone and say yes or no. Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. perfect. So now moving further, अब आप नीचे वाली line देखोगे, when you see the R input, the R input is this and S input is this. Just see. Now as soon as the R input has been completed, just see. Now R input is completed. Just see. The circuit is complete. The value is R goes over here and the high is over here. Okay, so it is just showing you how the logical part works of SR flip flop. Okay, now moving further. So as soon as see both circuit, now it is completed. Now this is the block diagram that we have discussed in the class. We have S, we have R, okay, and we have latch. अब latch क्या होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ. This line which is at this is known as low and this is known as high. ठीक है, अगर लाइन यहाँ पर नीचे है then it means low, और लाइन अगर यहाँ पे ऊपर आ गई है तो it means high. A point is clear for all. If it is, please raise your hand. ठीक है, अगर ये लाइन नीचे है तो इसका मतलब आपका वो लो है, ठीक है, आउटपुट, और यहाँ पे अगर लाइन आ गई है ऊपर तो it means the value is 1. 0 पे यहाँ पे चलेगा and 1 पे यहाँ पे चलेगा. Okay, now moving further. Just see. Now value is 1. Just see 1 I, it is mean, just see, it is over here for 1. For 1 it is over here. ठीक है, and अगर 0 आएगी तो वो नीचे हो जाएगा. Just see the output. जैसे 0 होगा उसका वो नीचे हो जाएगा. 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 हो गया यहाँ पे, और फिर आगे उसमें वो 1 होगा तो ऊपर हो जाएगा. So it moves like this. If it is 1 it is up, if it is 0 it is down. Logic is clear. तो ये इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन कर रहा था. तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ. ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये चीज क्लियर हो गई? प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू ऑल, डोंट वरी. ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर. मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत तेज अंग्रेजी में बोल रहे हैं ट्रेनर, तो आपको समझ में नहीं आएगा. नाउ अगेन वी हैव अ फ्लिप फ्लॉप डायग्राम ओवर हियर. ओके, अब ये कोई मुझे बता सकता है ये क्या? एंड गेट आपका यहाँ होता है, सेट ऑफ इनपुट्स आपके ए और बी है और ये आपका आउटपुट होता है. तो एंड गेट आप ऐसे लगाते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक जो फ्लिप फ्लॉप आपके लिए बनाया है, इसने एंड गेट यूज किया है यहाँ पे। तो एंड गेट का आप देख लो, ए बी इनपुट होता है, ठीक है। और अगर इनपुट सेम हो तो आउटपुट आपके, इनपुट अगर जीरो हो, एक भी जीरो हो, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो फॉर दिस जीरो, फॉर दिस जीरो एंड फॉर दिस वन, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि एंड गेट लगा के हम कैसे आउटपुट को यहाँ पे रीड करते हैं। ये चीज हमने लास्ट टाइम क्लास में करी थी, एम आई राइट? जब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप किया था, Yes, तो sir. एसआर फ्लिप फ्लॉप वी हैव डन दिस। ये हमारा डायग्राम थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे डायग्राम ये इस तरीके से शो कर रहा है। अवर डायग्राम वाज बिट डिफरेंट। हमने गेट्स को वैसे यूज करके किया था, एंड गेट यूज करके हमने किया था। तो यहाँ पे दिस थिंग इज सेम, दिस थिंग इज सेम, बट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज बिट डिफरेंट। आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो। अगर ए जीरो है और बी जीरो है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड विल मूव एंड सो ऑन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको, ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे हमें करना है। एंड डी फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर। आई विल जस्ट स्टार्ट विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में होता है क्या है, ठीक है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो होता है, ठीक है, उसके अंदर दो आपके गेट्स यूज होते हैं, ये देखिए। और लैच क्या होती है, ये जो लाइन यहाँ से ये नीचे होके यहाँ पे ये जा रही है और इसके अंदर जा रही है, और ये वाला इनपुट यहाँ से इट इज गोइंग टू बैक टू दिस गेट। तो दिस इज नोन एज लैच, LATCH लैच। आई होप लैच क्लियर हो गया सबको। लैच क्लियर हो गया। लैच होता है क्या है, तो लैच क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका जो आउटपुट है, इट गेट का आउटपुट जो है वो इनपुट किसका बन जाता है, इट बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर गेट। सिमिलरली फॉर दिस गेट द आउटपुट ऑफ दिस गेट बिकम्स द इनपुट ऑफ दिस गेट। तो दिस इज नोन एज द लैच। Point is clear? Now everyone knows what is a latch in a circuit diagram. Please Yes, raise your sir. hand, yes or no. ठीक है, so if you haven't understood, I'm just explaining once more. So what is the latch? ठीक है, तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में latch क्या होता है, ठीक है। See, the output of one gate becomes the input of another gate. Similarly, the output of this gate becomes the input of another. So this is known as a latch. Point is clear for all? Please raise your hand. I want hand raise from all of you. At least reply. ठीक है, because I know how the things is to be incorporated in your brain. Simple. अगर मैं सीधा वीडियो आपको पास ऑन कर देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। Perfect. Now moving to explanation of this flip flop. We have a set हम ऐसे बनाते हैं, then we have a reset हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हो, हमारे पास सेट होता है, रीसेट होता है, क्यू होता है। वी हैव अ क्यू व्हिच इज नोन एज अ आउटपुट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। एंड अनदर वन इज क्यू डैश व्हिच इज अ रिवर्स ऑफ क्यू। अगर क्यू आपका 1 है तो क्यू डैश आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप का पूरा ये डायग्राम है। अगर क्यू 1 है तो क्यू डैश उसका उल्टा होगा, अगर क्यू 0 है तो क्यू डैश 1 होगा। आई होप लॉजिक इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट, ये चीज लैच होती है, LATCH लैच, ठीक है। ये जो लाइंस दिख रही हैं, और ये सेट होता है, ये रीसेट होता है, ठीक है। अगर क्यू आपका 1 है तो क्यू डैश आपका 0 होगा, और क्यू आपका 0 है तो क्यू डैश आपका 1 होगा, ठीक है, विच इज द रिवर्स ऑफ क्यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लग रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। कुछ लोगों को इसमें फ्लिप फ्लॉप में जो डाउट थी कि फ्लिप फ्लॉप दिखता कैसे, वर्क कैसे करता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप का एनिमेटेड डायग्राम है आपके लिए, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई सबको। मैं एक बार इसको फिर से चला देता हूँ ताकि लॉजिक आपको क्लियर हो जाए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। दीज आर 2 गेट्स आई एम यूजिंग ओवर एंड एंड गेट्स, ठीक है। और यहाँ पे वही कह रहा है, हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स में यहाँ पे एक सेट आएगा, ठीक है, और दूसरा आपका रीसेट का ऑप्शन आएगा। फिर कह रहा है आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, क्यू आएगा यहाँ पे, और फिर क्या आएगा, क्यू डैश आएगा आपके पास यहाँ पर। क्यू की वैल्यू 0 1 हो सकती है, क्यू डैश की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी क्यू की क्या है। अगर क्यू की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, दूसरा आउटपुट क्यू डैश है। क्यू की वैल्यू अगर 0 है या 1 है तो उसका रिवर्स जो होगा, अगर 1 है तो उसका रिवर्स क्या होगा, आउटपुट क्यू डैश का होगा। अगर 0 है तो रिवर्स 1 होगा। और हम ये वाले गेट्स यूज करके, ठीक है, हम अपना एसआर फ्लिप फ्लॉप जेके जो भी फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से इन गेट्स को हम यूज करके हम अपना डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। ओके, नोबडी इज हैविंग एनी डाउट, ठीक है। मतलब अब आपको ये पता लग गया कि भाई फ्लिप फ्लॉप दिखता कैसे है, वो चलता कैसे है, ठीक है, क्योंकि एनिमेशन में आप और अच्छी तरह आप देख सकते हो हाउ द थिंग्स आर, ठीक है। तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं यहाँ पे इजी चीज आपको बता रहा हूँ। अब ये चीज आपको समझने वाली है, ठीक है। थोड़ा ये जैसे कभी बल्ब आपने देखा घर में, कभी बल्ब जलाते हो, कभी सबने बल्ब जलाया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर एक्टिव है तो 1 होगा, और एक्टिव 1 है तो लाइट ऑन हो जाएगी, 0 है तो लाइट ऑफ होगी, 1 है तो लाइट ऑन हो जाएगी, 0 है तो लाइट ऑफ हो जाएगी, सिमिलरली एंड सो ऑन। और एक्टिव है तो ये ऐसे जाएगा, और इनएक्टिव है तो नीचे आएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ 1 पे है तो बल्ब जल जाएगा, 0 पे है तो बल्ब नहीं जलेगा। फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है? तो दिस सेज दैट 1 इज हाई, हाई यहाँ पर लाइन चलेगी, 0 इज लो, लो यहाँ पे चलिए। अगर हाई है तो उसका मतलब है कि सर्किट कंप्लीट है और ये लाइट आपकी जलेगी, जैसे हम घर पे करते हैं। हैव यू स्विच्ड ऑन द ट्यूबलाइट और a bulb in your place? So what happened as soon as you switch it on, so what happened? The circuit has been completed and automatically what happened? The value is high, which is 1, and फिर आपका ये bulb जल जाता है। On the other hand, जब आप उसको ऑफ करते हो तो it becomes low, value is 0 और ये ऑफ हो जाता है। ये चीज हम घर पे करते हैं, ठीक है? लेकिन ये बैक एंड पे ऐसे चलती है। If the value is high, then it is bulb is on. If the value is low, bulb is off. जैसी वैल्यू यहाँ पे देखो 1 आए, हाई होगी, ये 1 होगा, इट इज ऑन, और जैसी वैल्यू आपकी 0 है, इट इज ऑफ। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, इस लाइन पे आते ही ऑन ऑफ हो रहा है। बहुत ध्यान से आप देखो, जस्ट प्लीज क्रॉस चेक एवरीवन हाउ द थिंग्स इज। देखो यहाँ पे अभी लो है या ऑफ है, जैसे ही यहाँ पे हाई जाएगा, फिर लो आया, फिर हाई आया, यहाँ पे ये देखो, ये इस पॉइंट पे हाई है, लो हो गया, सो ऑन। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Turn on your microphone and speak. I can ask anything from anyone. Yes. ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया कि घर पे तो आपकी ट्यूबलाइट या स्विचेस जो लगे हुए हैं, उनका सर्किट जब कंप्लीट होता है तो बैक एंड पे आपका क्या होता है? हाई होता है, और हाई की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, सर्किट जब कंप्लीट होता है, और जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है, जब हम उसको ऑफ कर देते हैं, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। नो सर। No, sir. ठीक है, फिर ठीक है, ओके फिर ठीक है। अभी इतना ही था आपको समझाने के लिए। अब मैं डी फ्लिप फ्लॉप आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है? हाउ द डी फ्लिप फ्लॉप इज एंड हाउ डज इट वर्क। तो हाँ जी सर, वो ट्रुथ टेबल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर। कौन सी वाली ट्रुथ टेबल? एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल में दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है बच्चे, पूछो मुझसे। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया था ट्रुथ टेबल का। क्या नहीं है? किसको समझ में नहीं आया था एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल? प्लीज रेज योर हैंड्स। किसको एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल समझ में नहीं आई थी? अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्वेरी है। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल एक बार बनाना सिखा देता हूँ। ओके परफेक्ट, ठीक है। फिर हम हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप। यस और नो? एक्चुअली माइक्रोफोन ऑन करके यस नो बोल दो, हैंड बहुत सारे रेज हो रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा मैं करता हूँ। मैं अभी जो है पहले आपके लिए यहाँ पे इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए यहाँ पे पहले फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आता है एसआर फ्लिप फ्लॉप एनिमेशन में, ये ट्रुथ टेबल में प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोग को? ये वाली ट्रुथ टेबल, ये तो ट्रुथ टेबल से हम ये बनाएंगे ना एसआर फ्लिप फ्लॉप, यही वाला, इसी की बात कर रहे हो आप? सर क्यू और क्यू डैश वाला सर। हाँ ये वाला, ये अच्छा क्यू और क्यू डैश वाला, अच्छा वो वाला। ओके रुक जाओ। ओके फिर यहाँ पे इसमें थोड़ा टफ दिया हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इजी तरीके से समझा देता हूँ। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। आर यू रेडी एवरीवन? तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। यस सर। हाँ जस्ट a second, please give me just a second. Okay. So I'm just drawing this flip-flop diagram. Do let me know how it is. ठीक है, तो पहले हम एक लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी क्योंकि मैं यहाँ पे डिजिटल वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऊपर क्या होगा? R, और ये क्या होगा? S। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ पे हमारा गेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा गेट आएगा, और यहाँ पे भी हमारा गेट आएगा, ठीक है, और ये हमारा ये लाइन बन गया। दिस थिंग इज क्लियर फॉर ऑल? दिस थिंग इज क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लैच बनाएंगे, इसको हम लैच बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? आई Yes, होप sir. दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। Yes, sir. इसकी लाइन में सही कर देता हूँ, अगर लाइन सही नहीं होगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब यहाँ ठीक है, अब क्या है हमारा यहाँ पे, क्योंकि गेट का थोड़ा सा वो हम नॉर गेट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो मैं नॉर गेट की टेबल बना देता हूँ पहले, ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ इनपुट क्या रहेंगे उसके ए बी, और आउटपुट हम कहते हैं फॉर एग्जांपल उसका एक्स हो गया, ठीक है, एक्स उसका आउटपुट हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई ए बी की वैल्यू है 0 0, ठीक है, फिर है 0 1, फिर है 1 0, और फिर कहते हैं 1 1। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है? ये हमने ट्रुथ टेबल बना ली, किसकी किसकी ट्रुथ टेबल हमने Yes, बनाई ये वाली? कोई बता सकता है मुझे? नॉर गेट की, Nor gate. नॉर गेट की हमने ट्रुथ टेबल बना दी है, ठीक है। अब इस ट्रुथ टेबल के बेस पे हमें क्या करना है, हमें जो है आउटपुट, पहले हम इसका आउटपुट बनाएंगे, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके सेट ऑफ इनपुट सेम है, ठीक है, या कोई भी इनपुट आपका अगर 0 हो गया है, ठीक है, कोई भी इनपुट 0 हो गया है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनपुट क्या हो गया है, कोई भी एक इनपुट 0 हो गया ना ए बी का, जो मैंने सर्कल लगाया है, समझ में आ रहा है सबको? ये सर्कल जो मैंने लगाया है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कोई भी इनपुट, रिवर्स कर लेते हैं, कोई भी इनपुट अगर आपका इसमें 1 हो गया है, इसमें देख लो ध्यान से, कोई भी इनपुट अगर आपका 1 हो गया है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा आपका, इसमें 0 होगा, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर 1 नहीं है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ये पॉइंट क्लियर है आपका? ये चीज क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ये अब मेन चीज ये है, पता है, ये अगर आपने सही से बना ली, ठीक है, ये अगर आपने सही से बना लिया नॉर गेट, ठीक है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको ये मैंने ये बना दिया। अब हम इनपुट लेते हैं कि इनपुट हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो पहले हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, तो पहले हमारी जो वैल्यू है, हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं 0 0, ठीक है, तो पहले वैल्यू हम कौन से पुट करते हैं 0 0, लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इस एसआर ट्रुथ टेबल में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, एसआर की ट्रुथ टेबल में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, एम आई राइट? Yes, sir. क्यू और हमारा क्यू डैश हमारा क्या है, आउटपुट। तो अगर मैं ऊपर डायग्राम में बात करूं तो क्यू तो मेरा ये हो गया और क्यू डैश मेरा ये हो गया। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, तो पहली वैल्यू मैंने रखी 1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मैंने रखी 0, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? तो एस की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, और आर की वैल्यू क्या होगी 0। ये पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट No, यहाँ sir. पे? किसी को कोई डाउट है No, sir. यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है प्लीज? No, sir. No, sir. ये No, sir. No, sir. माइक्रोफोन से बेटा आप लोग जो है ना, माइक्रोफोन से अभी रिप्लाई करो, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता। स्क्रीन चेंज करने में ना फिर मुझे वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एस की वैल्यू 1 है, तो एस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप आओगे, इसका मुझे आउटपुट चाहिए, यहाँ पे आउटपुट चाहिए। जब एस की वैल्यू 1 है तो हम पहले स्टेप में कहाँ देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, मैं लाइन बना रहा हूँ। पहले स्टेप में आप यहाँ पे देखोगे, इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर देखो 1 किसका आ रहा है, इस टेबल में देखो 1 किसका आ रहा है, ये देखो इन सबके 1 आ रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो आउटपुट क्या होगा 0. Zero. ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये Yes, पॉइंट sir. क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी सबको पहले स्टेप में? तो पहले स्टेप में आपको 1 को यहाँ पे देखना है नैंड गेट की टेबल के अंदर, ठीक है। जब आप नैंड गेट की टेबल के अंदर देखोगे तो आपका ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू डैश का 0। क्या आउटपुट आ गया आपका क्यू डैश का? Zero. पॉइंट क्लियर है सबको? पॉइंट Yes. क्लियर सबको? ये आ गया 0। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. बच्चे बताओ मुझे प्लीज रिप्लाई, ताकि No, मैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए 0 यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? इस लाइन से होता हुआ 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया क्यू डैश को। अगर 2 0 है तो आउटपुट क्या होगा,
1. में देखो, 1. समझ गए? Yes, sir. ये देखो इसके लिए यहां से, ठीक है। तो जो 0 का आउटपुट क्या होगा आपका? 1। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1। पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ये स्टेप क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? Yes, sir. No, sir. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एरोज मैंने बना दिए ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, एरोज बना दिए तो आपको याद रहेगा। ये एरो मैं यहाँ से send कर रहा हूँ यहाँ पे। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इसका, ताकि मैं इसको रब करके नेक्स्ट वैल्यू आपको बताऊं। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आ रही है? Done, sir. चलिए ठीक है, ओके। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आई थी। यहाँ पे हमारी क्या आई थी, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे 1 थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है? 0 और 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अब वैल्यू क्या हो गई? 0 0। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये चीज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्रीवियस आउटपुट, पीएस। क्या होता है ये? पीएस, प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, प्रीवियस स्टेट। ठीक है, जब आप 0 0 करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या होगे? इसका प्रीवियस स्टेट क्या थी? प्रीवियस वैल्यू क्या थी इसकी? 1. 1। तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी, रूल है, यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको? No, sir. Yes, sir. हाँ, यस या नो? No. नो नो क्यों? ये देखो पुरानी दोबारा वैल्यू हमारी बोलिए। क्यू थी ना पहले स्टेट में। यहाँ पे देखो क्यू की पुरानी वैल्यू क्या थी? ये एक स्टेट हो गया ना। अब हम दूसरे स्टेट में आ गए, मतलब दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं सर की, 0 0। तो पुराने उसमें क्यू की वैल्यू क्या थी? 1। याद है? तो ये 1 वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट इसके लिए। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू, जिसको हम प्रीवियस स्टेट बोलते हैं। तो ये प्रीवियस स्टेट की जो वैल्यू थी 1, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. बड़ा समझने वाली चीज है, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। ठीक है, ये स्टेप ये कहता है कि प्रीवियस स्टेट की जो भी वैल्यू है, प्रीवियस स्टेट की वैल्यू क्या है? ये रही क्यू की। क्यू की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी? वो यहां से उठ के इस गेट में आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर 0 और 1 है, 0 और 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? 0. 0। तो 0 हमारा किसका आउटपुट आ रहा है? 0 किसका आउटपुट आ रहा है? Q dash. क्यू डैश का। Noted. क्लियर है पॉइंट? Yes, पॉइंट sir. क्लियर है? ठीक है, अब ये 0 जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा, और डबल 0 है तो क्या होगा आउटपुट? 1. डबल 0 है तो क्या आउटपुट होगा? 1। 1. क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? फिर से बताऊं मैं? अगर No, किसी sir. को लगता है कि समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। शुड आई रिपीट? No, sir. सबको क्लियर है ना? प्लीज रेज योर हैंड जिनको Yes, क्लियर है। sir. प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, देखो झूठ बोलोगे आप अपना करियर खराब करोगे, बात खत्म। परफेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस। ठीक है, तो मैं ये लाइंस जो मैंने बनाई है, मैं लाइंस पहले मैं रब कर रहा हूँ। एक मिनट, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ये इस वैल्यू, ये वैल्यू है। ठीक है, एस की ये वैल्यू है, इसके लिए है ये। ठीक है, मैं एरो भी बनाए दे रहा हूँ। इस वैल्यू के लिए एस आर वैल्यू जो है 0 0 कैसे है?
Can I move forward? Can I move to the next value? Can I Yes, next sir. move to the next value? Yes, sir. ओके फिर इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ये वैल्यू हटा रहा हूँ, लाइंस जो बनी थी, ठीक है। चलो, और मैं इन ये जो पुरानी जो वैल्यू है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये है, ठीक है, ये हो गया, ये है, और ये, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे कौन सी वैल्यू आएगी, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पे हमारे सामने आएगी 1, ठीक है, और क्या आएगी नेक्स्ट वैल्यू हमारी, कौन सी होगी? 0 0 1 and 1. 1, ठीक है। एस में क्या होगा? 0, और यहाँ पे क्या होगा? 1। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आउटपुट 1 है, यहाँ पे आउटपुट क्या है? 1 है, तो यहाँ से आपको इधर देखना है, ठीक है। अगर आउटपुट 1 है तो इसका क्या आएगा? यहाँ पे देखो कहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे कहाँ पे इनपुट, किसी का इनपुट 1 है, इनका देखो इनपुट 1 है ना, इनका इनपुट 1 है ना, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ रहा है इनका? आउटपुट क्या आ रहा है? 0 यहाँ क्या आएगा? क्लियर? तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरी? यहाँ पे तो 1 था। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, पहले आपको 1 देखना है, और यहाँ पे 1 देखना है कि यहाँ पे गेट्स में, गेट की टेबल में कौन सा आपका आ रहा है? 1 यहाँ पे आ रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? 0, तो 0 मैंने लिख दिया। अब ये 0 यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर डबल 0 है, अगर डबल 0 है, ठीक है, तो अगर डबल 0 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 1. 1 1, 1. ठीक है। अगर डबल 0 है तो आपको आउटपुट क्या आएगा? ये देखो, तो क्या हो गया यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू? पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ हमारी पुरानी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये पुराना लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारी? 1। क्लियर हो गया? ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। और क्यू की वैल्यू 0 थी, ये देखिए क्यू की वैल्यू 0 थी, ये मैंने यहाँ लिख दी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर फॉर ऑल? कोई डाउट? Yes, sir. अब तो कोई डाउट नहीं है ना? सर कैसे इसमें होगा? प्रीवियस वैल्यू क्यों नहीं दी सर? हाँ, सर इस वाले में सर प्रीवियस वैल्यू क्यू की 1 क्यों नहीं दी? इसमें हम नहीं लेंगे क्यू की वाली, इसमें हम देखो ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो सेकंड स्टेप में ही आप लेते हो, ठीक है। एस के स्टेट में लेते हैं, सेट के स्टेट में, रीसेट के स्टेट में लेते हैं, ओके सर। ठीक है। ये बताइए, ये ट्रिक है इसको करने की, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये आ जाए ना। हाँ जी, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि ये लाइन जो है ना सही से हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब पी एस स्टेट में यहाँ से हटा के मैं इधर लिख लिया, तो ये आपकी यहाँ पे मैं ऐसे करे दे रहा हूँ, ये लाइन ये आ गया, और ये आपका पी एस स्टेट हो गया, पी और ये एस हो गया, पी एस स्टेट हो गया ना। अब इसको ऐसे कर लेंगे, नीचे तक आ जाएगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखो हर स्टेप का अलग अलग चल रहा है, दिख रहा है ना आपको? हर इनपुट का मतलब, अगर आप बोलोगे सेट ऑफ इनपुट क्या है, पहला सेट ऑफ इनपुट ये है, दूसरा सेट ऑफ इनपुट ये है एस आर की वैल्यू, तीसरा सेट ऑफ इनपुट एस आर की वैल्यू ये है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो पहले मैंने ये दो वैल्यू इनपुट करी, देन मैंने ये दो वैल्यू इनपुट करी, फिर मैंने ये दो वैल्यू इनपुट करी, तो ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको मैं रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट वैल्यूज में आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वैल्यूज हम कैसे इसमें हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चलो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, पुरानी वैल्यूज में रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट न्यू वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर सके। ये हो गया, इसको मैंने रब कर दिया, इसको मैंने रब कर दिया, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या वैल्यू एस आर की आ रही है 1 1, तो यहाँ पे एस क्या आया 1,
यहाँ आर क्या आया 1। पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. अगर ठीक है, अगर देखो, अगर आपका, अगर यहाँ पे देखो, अगर 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे फिर से देखो 1 किसका है? किसी एक में 1 है, हाँ इनमें 1 है, देखो तो आउटपुट क्या आएगा? 0। Zero. तो ये क्या आ गया? 0। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर हो गया? ठीक है। Yes, sir. अब ये 0 यहाँ से उठ के यहाँ से ऐसा आता है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब 1 0 है तो क्या है? 1 0 है तो क्या है? ये देखो Zero. 0, तो क्यू डैश 0 है. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? Yes, कोई sir. डाउट? अब क्लियर हो गया कि कैसे करना है? Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? आई होप मैंने क्लियरली समझा दिया आपको फ्लिप फ्लॉप का, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप। बहुत बच्चों को डाउट हो रहा था ना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। प्लीज रेज योर हैंड, आई जस्ट वांट टू सी। प्लीज रेज योर हैंड्स थिंक इफ दिस इज क्लियर फॉर ऑल। ठीक है, तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे कि हम कैसे करना है इसको। ठीक है, एक मैं इसका जरा वो फ्रेम थोड़ा 50 कर देता हूँ। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हम किसके लिए बात कर रहे हैं? लास्ट स्टेप में वी आर टॉकिंग अबाउट these values. You are talking about these value, s की value this and r की value this. ठीक है, मैंने एरो भी बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 1 है ना, तो 1 के बाद आप सीधा कहाँ देखोगे इसको? टेबल में देखोगे 1 कहाँ पर आ रहा है, फिर टेबल की जो भी वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू। ठीक है, लॉजिक इज क्लियर नाउ? I hope logic is clear for all. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर तो ऐसा करते हैं कि अब डी फ्लिप फ्लॉप कर लें या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है, या इसको अभी पक्का करना है? प्लीज माइक्रोफोन ऑन करके जवाब दो बच्चे। इसको अभी पक्का करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में डी फ्लिप फ्लॉप करना है? एसी में कर लेते सर डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ठीक है, तो आई होप सब लोग कंफर्टेबल है ना? ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लो कि सही से आपने ये लॉजिक स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं लोगे तो स्टेप्स आप लोग मिस कर दोगे। तो मैं इसको जरा और इधर कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल अगर ज्यादा कर दूंगा तो ये आपको शायद रीडेबल भी ना हो, ये बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते। क्या आ रहा है ग्रुप पे सब? पता नहीं क्या आ रहा है यहाँ ग्रुप पे। ठीक है, क्लियर? कैन आई मूव फर्दर? यस सर यू कैन मूव फर्दर। ओके, फिर ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू। एक्चुअली दो प्रोग्राम चल रहे हैं, क्लास भी चल रही है, उधर जामी मिलिया का भी एक सेशन चल रहा है, तो आई एम प्रेजेंट इन बोथ। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। ओके, परफेक्ट। या ओके, perfect. So moving with the D flip flop. ठीक है, तो इसको मैं erase कर रहा हूँ। I am starting with the D flip flop. So can I erase this? ये D flip flop की मैंने डेफिनेशन बता दी थी, इसको मैं erase करे दे रहा हूँ। ये नीचे का जो है, वरना फिर आप लोग को लगेगा कि ये D flip flop है। ये D flip flop नहीं है। ठीक है, let me erase this part. ये अगर मैं चाहूँ तो इसी में आपको समझा सकता हूँ। चलो इसी में समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप। अब कोई मुझे बच्चा ये बताए कि यहाँ पे कितने सेट ऑफ इनपुट्स हैं? कोई बच्चा ये बता सकता है कितने सेट ऑफ इनपुट्स हैं इस डायग्राम में? अब मैं डी फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई बच्चा ये बता सकता है कितने सेट ऑफ इनपुट्स हैं इसके अंदर? 2 सर। 2। क्या क्या नाम है? एस आर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखो ध्यान से। अब हमें डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? डेटा होता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं पहले लॉजिक आपको बता देता हूँ कि होता है क्या और कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि whenever you are talking about a D flop, तो D flip flop has been generated or it has been converted from a SR flip flop। तो SR flip flop में, ठीक है,
कुछ डीमेरिट थे वो मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अगर मैं इसको डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो स्टेप क्या है, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस एसआर फ्लिप फ्लॉप इन अ डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर दो चीजें लगेंगी, एक है आपकी क्लॉक पल्स, ठीक है, और एक चीज और है। तो मैं इसके अंदर ये चीज में आप ये हटाए दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे अगर आप डायग्राम, अगर मैं डायग्राम के थ्रू जाऊं तो मैं आपको डायग्राम भी बना दिखा देता हूँ यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का आगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। यही चीज अभी हमने करी है एसआर फ्लिप फ्लॉप की। अगर वैल्यू वो है, अगर मैं इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप में अभी जो हमने किया है ना कि वैल्यू उसकी हाई है या लो है, या आउटपुट में क्यू या क्यू डैश की वैल्यू जो है, तो वो आप देख लो कि हमने ऐसे किया है, हाई वैल्यू है तो हाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनपुट इट इज बिहेविंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका अगर आप उसको जीरो कह रहे हो, ठीक है, तो जीरो अगर लो रख रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पे इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है क्यू और क्यू डैश की। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाई रीसेट में अगर हाई करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू लो हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट दोगे, ठीक है, जैसे जैसे इनपुट दोगे ये हाई है और नीचे लो है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो अगर इसको लो करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखो ये लो हो गया। तो लो का मतलब है आउटपुट आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप दोनों हाई कर दोगे 0 0 0 1 जैसे हमने किया था तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेट आपके सामने आ रही है, दोनों 1 आ रहे हैं, अगर मैं डायग्राम में देखूंगा तो ये वाली जो स्टेट है, ये वाली स्टेट मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये वाली स्टेट इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, 100%। ये वाली जो स्टेट थी एसआर फ्लिप फ्लॉप में, ये वाली, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड इनवैलिड स्टेट मानते हैं इसको हम, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ये वाली इनवैलिड स्टेट है। जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पे काम करते हैं तो ये इसका डीमेरिट है कि ये वाली स्टेट जो है इसको हम इनवैलिड स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से, ताकि ये इनवैलिड स्टेट आपकी यहाँ से हट जाए, इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप आपका आया था। तो यहाँ पे आप देखो, अगर दोनों वैल्यूज अगर आप 1 1 रख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 रखा है, देखो एस की वैल्यू 1 रखी है, आर की वैल्यू 1 रखी है, तो यहाँ पे इसकी और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी जो आ रही थी, ठीक है, वो आ रही थी आपकी 0 1। एक मैं डायग्राम में देख लेता हूँ। इट वाज इसकी जो वैल्यू के बाद हमारी जो आ रही थी ट्रुथ टेबल में, क्या आ रही थी, 1 0 आ रही थी ना शायद। एक बार चेक करके बताया हो कोई बच्चा, नीचे मैंने ड्रॉप कर दिया है, क्या वैल्यू आ रही थी। 0 नो नो, अगर मैं 1 1 पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू 0 0 आ रही थी ना दोनों की। Yes, sir. यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ना, ये जो आपने ट्रुथ टेबल बनाई है ना एसआर की, एसआर में जो लास्ट वाला आपका जो है 1 1, तो 1 1 का जो आउटपुट आ रहा था वो आया था 0 0। तो वो जो चीज है वो चीज है आपकी इनवैलिड स्टेट है, वो आपकी इनवैलिड स्टेट है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप को हमने चेंज किया, और चेंज करके हमने डी फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। पॉइंट क्लियर है सबको? अब क्लियर हो गया कि भाई डी फ्लिप फ्लॉप क्यों आया था, क्योंकि 1 1 जब आप पुट कर रहे हो तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो इनवैलिड वैल्यूज मानी जा रही है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज ये था कि अगर आप वैल्यूज जो है यहाँ पे सेट में और रीसेट में अगर आप 1 1 पुट कर रहे हो, ठीक है। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप की वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। अगर लो है और हाई है, ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, डैन गेट्स में, तो इसको वो मान रहा है कि भाई अगर मैं वहां पे चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैल्यूज जो मेरी इनवैलिड आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने डी फ्लिप फ्लॉप, तो उसको हटाने के लिए हमने डी फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, ये सब चीज, ये चीज क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन यह है कि भाई आपको जो है वही करना है जो आपके हिसाब से आपके कोर्स में है, ठीक है। तो इसमें बहुत, देखो ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये वाली आपको चीजें करनी नहीं है। मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वही आपके सिलेबस में है और वही आपको करनी है, ठीक है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करता हूँ। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम क्या करेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम कन्वर्ट करेंगे कौन से फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे मैं बनाई देता हूँ आपके सामने, ठीक है। सो कैन आई मूव फर्दर, रेज योर हैंड एवरीवन, कैन आई मूव फर्दर, रेज योर हैंड। Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आपको फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम में, अच्छा क्लास है आपकी, चलो ठीक है, तो अभी यहीं रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, Okay, sir. ठीक है, ठीक है। मैं कॉफी वॉफी पी लेता हूँ। हाँ बच्चे पूछो।
हाँ हाँ, अच्छा नहीं, असल में सेक्शन बी जो है ना, सेक्शन बी ये कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन ए है ना। सेक्शन ए का जो लैब है ना, पूरा लैब बच्चे, वो क्या नाम है, वो जो सर है नसीम राव सर, वैसे हूँ तो मैं भी उसमें, ठीक है, नसीम राव सर और मैं दोनों मिलके ले रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी ए को नसीम राव सर पढ़ा रहे हैं अभी पूरा, ठीक है, समझ गए ना, लैब सिर्फ लैब। तो सर जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं सेक्शन ए के सारे बच्चों को करना है। क्यों आप लोग एडिट नहीं हुए इस ग्रुप में, व्हाट्सएप मैंने नहीं सर, हम नहीं है। नहीं वो वाला ग्रुप मैंने जो भेजा था ना बच्चे, ग्रुप सेक्शन लैब का जो ग्रुप भेजा था, लैब का जो ग्रुप देखो देखो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप आओगे ना, देखो स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी, यस सर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये आपका यहाँ पे आ रहा है ना कॉन्सेप्ट पूरा, आपका सेक्शन कौन सा, एक सेकंड यार, ये कहाँ से आ गया, एक सेकंड रुक जाओ, ये कहाँ से आ गया, चलो ठीक है, हाँ। तो ये सेक्शन ए CSC लैब ये आ रहा है ना, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये देखो, इसमें रसीम राव सर भी एडेड है और मैं भी एडेड हूँ, ठीक है। किस पे कर दिया अपलोड सर ने? तो दूसरे वाले ग्रुप पे किया है। सर वो कंबाइंड ग्रुप है ABC का। कंबाइन ग्रुप है गूगल क्लासरूम का? ये सब वो बहुत स्टार्टिंग में बना था जब सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। अच्छा चलो, मैं सर से अभी बात कर लेता हूँ कि मैंने ये देखो सर को भी ऐड किया हुआ है और मैंने ग्रुप बनाया, आप सबको ऐड किया। लैब का देखो, लैब का ये ग्रुप अलग है, देख रहे हो ना, तो जो भी लैब का प्रोजेक्ट है वो इसमें तो हम लोग ज्वाइन है। हाँ मैं सर को बता दूंगा, देखो अलग अलग ग्रुप सबके बने हुए हैं, ये देखो सेक्शन बी थ्योरी, सेक्शन सी थ्योरी, सेक्शन ए लैब, सेक्शन बी लैब, सेक्शन सी लैब, बीटेक का ये है मेरा ग्रुप। तो ठीक है, मैं सर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, मैं उनको बता दूंगा इसमें भी अपलोड कर दें, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनसे लेके मैं खुद अपलोड कर दूंगा, ठीक है इसमें, ओके सर। ठीक है ना बच्चे? ओके सर, थैंक यू, ओके फिर, ओके चलो, लेट मी टेक द अटेंडेंस एवरीवन, ठीक है। आई होप SR फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो गया सबको।